Hello students, good morning. So all the students have done with superb performance. They have given your exams. They have given their online exams. Okay. So generally after exams what we are doing? We are going for vacations with mom and dad, right? But today I will take you to somewhere. So आज हम कहीं पे जाने वाले हैं. Yes, we will go online, but where we will go? That is the question, right? So let's get all the students ready. जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं? We are packing our bags, we are wearing new clothes. But यहाँ पे हमें क्या करना है? Here we have to get ready mentally, right? We have to remember, we have to capture something. So you have to sit silently in one room to study this thing. Okay. So as you can see on the screen, there is written country flags in the world. In this world there are so many countries. In country there are so many states. In state there are so many cities. In cities there are so many towns and villages, right? But today we are going to learn about country and their flag. Okay, so here one boy is ready with his cycle. Here you can see map of the world. There are so many countries. Can you find out India? Yes, it is here. Okay, so all the students, let's get set and ready. Yes. So first country came India. What is the color of flag? Orange, white and green. You have to remember which country is this. All the students are knowing that this is of India. India. Cycle is going on. This is China. This is flag of China. आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं. क्या है वहाँ पे? Let's see that this is flag of Italy. Let's go somewhere else. This is Afghanistan. What is Afghanistan? ये सभी कंट्री के फ्लैग है जो यहाँ like we are seeing here. We are observing. After Afghanistan, there is turn of Australia. This is flag of Australia. ये आपको याद रखना है, okay? चलो बहुत सारे कंट्री हम घूम के आ गए. Now this is Bangladesh. It's very simple to remember. This is flag of Bangladesh. चलो आगे चलते हैं fast. This is flag of Brazil. चलो और आगे चलते हैं, चले. This is flag of Canada. We can see picture of one leaf. कनाडा के बाद हम जाते हैं United States. This is flag of United States. और आगे चले तो क्या आता है? This is flag of Germany. This is flag of Greece. And now it came Israel. This is flag of Israel. Yeah, it's a flag of Japan. This is also very easy to remember, Japan. And we came to Malaysia. This is flag of Malaysia. And this is of Nepal. In Nepal you can see there are two types of pictures given, and with the two color combination white and red. चलो और आगे चलते हैं, थकना नहीं है हमें. ये एंड इट्स केम न्यूजीलैंड. क्या आया? न्यूजीलैंड. ये न्यूजीलैंड का फ्लैग है. ये इट्स कम नॉर्वे. इट्स नॉर्वे. नाउ दिस इज फ्लैग ऑफ पाकिस्तान. इट्स अ ग्रीन कलर. देयर इज स्टार एंड मून. चलो अब कहाँ पे जाना है हमें? वी अराइव टू सऊदी अरेबिया. दिस इज पिक्चर ऑफ
Saudi Arabia. This is flag of Saudi Arabia, we can say. चलो आगे चलते हैं. ये we reached to Singapore. We reached to Singapore. Okay, fine. Now I think our journey is over. I hope all the students enjoyed this trip, right? तो अगर आपको ये याद रखना है तो एक बार में कुछ नहीं होगा, आपको 5 to 6 टाइम्स ये ट्रिप करनी होगी. So get set and ready for this trip. After done with our trip, I think we shall begin with our chapter number 5, Flags of the World. Here you can see the whole world contains so many countries. There are so many countries and different flags are there. You will have to find out India. Now not only India, but you are able to identify many countries among this, right? So the name of the chapter is Flags of the World, chapter number 5. So let's get started. Our national flag is very important to us and we should always feel proud of it. It was designed by Pingali Venkaya, an agriculturist and freedom fighter. It was adopted as the national flag of India on 22nd July 1947. Now you can see here 3 colors are given. Orange, white and green. This seems like black color but actually it is green color. Okay, तो कौन सा कलर किसके लिए रखा है वो तो हमें पता होना चाहिए. At least we should aware why such colors are kept. यहाँ पे pink, yellow, red वो सब कलर्स क्यों नहीं रखे? Why only 3 colors are getting selected over here? So let's know the meaning. Saffron. Saffron का meaning होता है orange. It is called saffron color. Saffron color क्यों रखा है? Stands for courage and sacrifice. साहस और बलिदान के लिए. Now the second color is white. Stands for truth and purity. सच्चाई और पवित्रता. Now in between you can see blue wheel. This is stand for peace and progress. शांति और प्रगति. The last one is green color, which is stand for prosperity and energy, समृद्धि और ऊर्जा. Now students, if we are staying in India then we should aware of all such things, right? ये हमें जनरल नॉलेज सब होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में है. क्या फ्लैग रिलेट करता है एक्चुअली? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग टू नो. तो फर्स्ट कलर है सैफरन कलर, स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. ऑफ कोर्स हमारे कंट्री में बहुत सारे आर्मी मैन है, बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं वॉर के लिए, अपना फ्रीडम हमें मिले, हम अच्छे से रह पाए सिक्योरिटी से, उनके लिए वो क्या करते हैं वॉर करते हैं. बहुत सारे लोग उसमें, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है उसमें, राइट? तो उसमें क्या है, वो लोगों में क्या है, सेक्रीफाइस करने का एक वो जुनून है. दे आर डूइंग सेक्रीफाइस फॉर अस. और करेज, सब साहसी लोग हैं इंडिया में, राइट? वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी. हमारे इंडिया में लाइक वी कैन फाइंड मैनी पीपल, बहुत अच्छे से लोग रहते हैं. स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ऑल द पीपल ऑलवेज दे आर स्पीकिंग ट्रूथ और प्योरिटी. पवित्रता होती है. बहुत सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो उसमें क्या है, बहुत श्रद्धा से करते हैं, बहुत प्योरिटी है हमारे इंडिया में. नाउ ब्लू व्हील स्टैंड्स फॉर पीस एंड प्रोग्रेस. वो शांति के लिए एक प्रतीक है, शांति का प्रतीक है. और उसमें क्या है, प्रगति. व्हील कैसा है, घूमता ही रहता है व्हील, राइट? जब हम कुछ व्हीकल चलाते हैं तो ऐसे ही वो स्टैंड बाय मोड में नहीं होता है, इट इज़ रोलिंग डाउन, मतलब वो आगे आगे जा रहा है. तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फॉर आवर कंट्री टू गो फॉरवर्ड, टू हैव अ वेरी गुड लेवल ऑफ प्रोग्रेस. एंड द लास्ट वन इज़ ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड एनर्जी. ग्रीन कलर का क्या होता है, एग्रीकल्चर में हमारा इंडिया बहुत आगे है, खेती में. सो इट शोज ग्रीन कलर, उनसे हमें क्या मिलती है, समृद्धि और ऊर्जा मिलती है.
एनर्जी मिलती है. सो आई थिंक दिस इज़ द वेरी नाइस थिंग टू नो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ये हमारे इंडिया के बारे में सबको पता होना ही चाहिए. नाउ इफ़ वी स्टार्ट विद द चैप्टर, हियर 3 कैरेक्टर्स आर गिवन. कितने कैरेक्टर्स दिए हैं? 3 कैरेक्टर्स दिए हैं. एक तो है ग्रैंडपा, एक तो ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है और एक सन है, उसका नाम है केतन. राइट. तो यहाँ पे हमने सीखना क्या है? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स. सभी कंट्री के अलग अलग फ्लैग तो हमने सीख ही लिए, वी लर्न दैट. बट व्हाट अदर थिंग्स आर देयर? यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में नहीं है ये चैप्टर. इट इज़ गिवन इन लेटर राइटिंग फॉर्म. अगर हमें किसी को लेटर लिखना है तो हमें आना चाहिए, राइट. सो वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर हाउ टू राइट डाउन लेटर. तो सबसे पहले केतन अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर को लेटर लिखता है, फिर कुछ पूछता है उसमें. तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर रिटर्न पे लेटर लिखते हैं. दे आर आंसरिंग ऑफ दैट लेटर. अगेन केतन उसको लेटर लिखता है कि उनको ये लेटर में से क्या क्या सीखने मिला और क्या कुछ नया उन्होंने किया है, राइट. सो whenever we are writing letter, we will start from greetings, and here Ketan is writing, dear grandma, how are you and grandpa. सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? आप कैसे हो? जैसे हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं बोलते चलो खाना खाने बैठ जाओ, ये लो पानी पी लो. व्हाट वी आर आस्किंग, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो, राइट. सो इन दैट लेटर आस्क द सेम थिंग, हाउ आर यू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा. Yesterday I was reading a lovely book on the adventures. मैं एडवेंचर पे मतलब साहसिकता जो होती है उनके ऊपर से एक बुक रीड कर रहा था. जैसे कोई शिवाजी है, हमारे जो किंग थे प्रीवियसली, फिर महाराणा प्रताप है, उन्होंने कैसे कैसे काम किया. गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, फ्रीडम फाइटर्स थे. तो वो लोग एडवेंचर्स थे, वो बहादुरी से एकदम काम करते थे. तो Ketan was reading one of the book on the adventures topic of a famous people. The book said Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Moon पे first person कौन गया था? Neil Armstrong. तो ये book में लिखा था. And Ketan read that. You can see picture of Neil Armstrong. He was the first person to walk on the moon. The first man to walk on the moon. He raised the American flag on the moon. वहाँ पे जाके सबसे पहले मून पे क्या किया? अमेरिका का फ्लैग है वो रेज किया, राइट. तो लाइक इट्स आवर ड्रीम. वी इवन कैन नॉट इमेजिन दैट वी कैन गो ऑन मून, बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वेंट ऑन मून एंड रेज द फ्लैग ऑफ अमेरिका ओवर देयर. नाउ लेट्स रीड फॉरवर्ड. A few pages later I read, थोड़े पेजेस के बाद मैंने क्या रीड किया? Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzing Norgay were the first man to reach on the top of Mount Everest. Mount Everest बड़ा ही सबसे बड़ा माउंटेन है. वहाँ पे आइस होता है, जैसे यहाँ पे डस्ट होती है ना रोड पे, और वी कैन सी और लाइक ऑन द वे, वहाँ पे इतना क्या होता है? आइस होता है. तो माउंट एवरेस्ट बहुत ही बड़ा एवरेस्ट है. इट इज़ द हाई लेवल ऑफ टॉप लेवल ऑफ एवरेस्ट इन दिस वर्ल्ड. वहाँ पे सबसे पहले कौन गए थे? एडमंड हिलरी एंड शेरपा तेंजिंग नोरगे. हाउ टू रीड दिस? इज रिटन एडमंड हिलरी, शेरपा तेंजिंग नोरगे. ओके, they were the first person to reach on the top of the Mount Everest. माउंट एवरेस्ट पे नहीं, माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंचने वाले फर्स्ट पर्सन थे. यहाँ पे पिक्चर्स देख सकते हो आप. Hillary took many photographs of the scenery and of Sherpa Tenzing waving flag of Britain, the United Nations and Nepal. वो लोगों ने क्या किया था? कौन सा फ्लैग रेज किया था वहाँ पे? ब्रिटेन का. ओके, एंड नेपाल का भी फ्लैग वहाँ पे रेज किया था. आई नो दैट एवरी कंट्री हैज़ अ यूनिक फ्लैग ऑफ इट्स ओन. यस, सभी कंट्री के फ्लैग के कलर एक जैसा तो होगा नहीं. सभी कंट्री के फ्लैग का कलर यूनिक मतलब अलग अलग होता है. बट वाई आर दे सो इम्पोर्टेंट? बट वो क्यों इम्पोर्टेंट है? हम कोई भी कलर सिलेक्ट करके रख दे तो चलेगा? नो, वी हैव टू पे रिस्पेक्ट. सपोज फ्लैग को हमें नीचे नहीं रखना चाहिए. ऐसे
कहीं भी रख देना नहीं चाहिए, हमारा फिट जो है, हमारा पैर है वो टच नहीं होना चाहिए फ्लैग से। वी हैव टू पे वेरी मच रिस्पेक्ट, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो दिस केतन, दिस बॉय इज आस्किंग टू ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, व्हाई आर दिस सो इम्पोर्टेंट, फ्लैग इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। डू यू नो एनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लैग, क्या आपको फ्लैग के बारे में और कुछ पता है। I am really looking forward to your reply as always. मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। I will looking forward. I will wait for your reply. Your loving grandson, Ketan. Okay, so Ketan has written this letter to ask something about flag. पहले उन्होंने जो बुक में रीड किया वो बताया अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हिलरी एडमंड एंड शेरपा तेंजिंग नोरगे। फिर उन्होंने पूछा कि फ्लैग्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। दिस वॉज द फर्स्ट लेटर रिटन बाय केतन। लास्ट में जिनका नाम हो फ्रॉम में, वो क्या होता है, द पर्सन हु रोट द लेटर, जिन्होंने लेटर लिखा उनका नाम कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है। जिनको लेटर लिखा उनका नाम कहाँ पे आता है, फर्स्ट में। किसको लिखा था, ग्रैंड माँ को लेटर लिखा था, सो इट वॉज रिटन ऑन द टॉप। फ्रॉम जिन्होंने लिखा था उनका नाम आ गया लास्ट में, मतलब केतन ने ये सब लिखा है ग्रैंड माँ को। ओके, सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पेज ऑफ द चैप्टर दैट हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वेंट ऑन मून, who was person who went to the Mount Everest, no, the top of the Mount Everest, और किन्होंने कौन सा फ्लैग कहाँ पे रेज किया था, that is also need to remember by all the students. Okay, so we have done with first page of our textbook. Today you will have to remember all the countries' flag. Okay students.